Next is the D block elements, right? Okay, one more point, they have the different or the variable oxidation state. Variable means they have different, means their oxidation state can go from +2, +3, +4, +5, or even sometimes +6 also. Okay, so they can exhibit so many oxidation state, plus also, minus also, right? Okay, next is the D block elements. Okay, in the S block which we studied, that the last electron will enter into the S block, S orbital, and the P block element, the last electron enter into the P orbital. But in this D block elements, we have one thing. Okay, in the D block elements, the last electron will enter into the penultimate shell. Penultimate shell. Now, every one of you, I think, know the penultimate shells. For example, this is our atom, one shell, two shell, this is the third shell. Now suppose this third shell is called as the last shell or the valence shell. So the second last shell, this shell is called as the penultimate shell, and the last shell is denoted by n, so penultimate shell become n minus 1, and this third last, this shell is called as the anti penultimate shell, it is n minus 2. Okay, so that's why for the D block, electronic the general electronic configuration, fine, it becomes n minus 1 D 1 to 10 ns 2. Okay, sorry, ns 0 to 2. Fine, 0 it can be or 2 it can be. So that is why this is the general electronic configuration. Now what are this D block elements? See, from group 3, from this group to group 12, this one is the, this, from this to this one, blue one, group 3 to group 12 is the D block elements, because the last electron is entering into the penultimate shell, and that penultimate shell is the D subshell. So the last electron or the differentiating electron when enter into the penultimate shell is called as the D block element, is called as the D block element. So how, for example, scandium atomic number 21, so configuration become 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then this is the 4, 10, 12, 18, this is the configuration of argon. Instead of this, we can just write argon. Total electrons are argon, and argon have the 18. Why we are writing argon, not potassium this, or not calcium, or not sodium? Why? Because argon is a noble gas, stable gases they are. After this 3p6, 18 electrons already filled. Then the electron will go to the energy wise we are filling na, then the energy will go to the 4s, then 4s2, then C3d1, the last electron is entering into the anti penultimate, this is the last shell, this is the n minus 1 penultimate shell. Clearly remember this thing, this order is according to the energy wise order given by the Aufbau, right? One scientist, they gave one spiral diagram, and according to this, but what is the last shell? Okay, the last shell, don't get confused in this, that third is the last shell. No, last shell, first shell will come, then second shell will come, then third shell will come, then fourth shell will come. So fourth is the last shell, but the last electron is entering into this third shell. Okay, so this the general electronic configuration, n minus 1 D 1 to 10 and S 0 to 2, right? So this is the general electronic configuration of the D block elements. So some properties we'll discuss of the D block elements. They have the variable oxidation state, same like this, from +2, +3 to +7 they can exhibit most of the elements, sorry, some of the elements, not all. Second, they have the good conductors of heat and electricity. Next, their compounds are colored and paramagnetic. Now what do you mean by this? Okay, paramagnetic generally means in this can be attracted by the magnet.
fine. But in terms of chemistry, how they are colored, paramagnetic means they have unpaired electrons. Okay, they have unpaired electrons in one orbital. When we are filling one up one down, right, this is the paired one na. Suppose if I had only one electron in this, okay, that is unpaired one. So when these they have the unpaired electrons, or when these electrons will go to excited state and then they will come return back to the ground state, they will emit some colors, right? So that's why these are colored, and they have some unpaired electrons. That's why this is paramagnetic. They are also form as the catalyst. They are also act as the catalyst. Catalyst means if we put in any chemical reaction, they will increase the rate of the reaction. Suppose if a reaction is going very slow, so if you put this, for example nickel we can put, okay, catalyst example, if I am saying catalyst is nickel, palladium, sorry, nickel, palladium, rhodium. Okay, these are some of the catalyst, right? Okay, so these are the catalysts. Form alloys. What are alloys? Alloys is a mixture of metals plus non-metals, a homogeneous mixture. For example, we can simply say na, steel. Steel is alloy of iron is there. Okay, carbon is also there. Okay, brass is a alloy. Okay, these are used to form alloys. Copper and zinc का mixture होता है ये, ठीक है, brass. So these are some of the properties of the d block element. सबसे पहले the most important property, इसका last electron enter कहाँ करता है, the penultimate shell, और इसकी general electronic configuration क्या है, n-1 d 1 to 10 and ns 0 to 2, right? Okay, so ये हो गए हमारे एस डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट. नेक्स्ट आता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट, द इम्पॉर्टेंट वन. ये एफ ब्लॉक हम कहाँ लिखते हैं, बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं, राइट. सी दिस इज आवर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, these two, lanthanides and the actinides. Okay, it contains total 14. Actinides also contain 14. So 14 plus 14 कितने हो गए हमारे 28. So total 28 हमारे पास होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एक सबसे इजी चीज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की याद करने के लिए, पीरियड दो ही है इसके पास, एक 6th पीरियड है और एक 7th पीरियड है. लैंथेनाइड 6 पीरियड के होते हैं, एक्टेनाइट 7th पीरियड के होंगे, पर इनका ग्रुप सेम होता है. देखिए ये लैंथेनाइट भी 3rd ग्रुप से निकले, राइट, और ये एक्टेनाइट्स भी कहाँ से निकले, ये लैंथेनाइट्स हैं, और ये एक्टेनाइट्स ये भी ग्रुप 3 से निकले. तो सब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो गई, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं इन टोटल. फाइन. ओके, इसका ग्रुप क्या होता है, 3rd, right. Okay, lanthanides, why it is called as the 4f elements और why it is actinides, इसको 5f भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4f में, एंड इसमें किस में जाता है, 5f ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं. तो इसको 4f सीरीज भी बोलते हैं और एक्टिनाइड्स को 5f सीरीज भी बोलते हैं. लैंथेनाइड्स का एक और नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स. वाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बिकॉज वाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बिकॉज इसका कुछ बिकॉज रेयरली दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, राइट. सो दीज आर द रेयर अर्थ elements. Fine. The our lanthanide, if we talk about the lanthanoids हमारे कहाँ से कहाँ, from lanthanum to lutetium, ये फाइंड आउट किए जाते हैं. ओके, कहाँ से कहाँ पे होते हैं, फ्रॉम 57 एटॉमिक नंबर टू 71 एटॉमिक नंबर. ओके, एक्टिनाइड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पाए जाते हैं एक्टीनियम टू लॉरेंशियम. ओके, और एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, और ये हमारे 89 to 113. फाइन. ओके, ये हमारे दो होते हैं 57 to 71 एंड 89 to 113. ओके, तो ये हो गए हमारे लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स. एक और बात एक्टेनाइड्स के बारे में, एक्टेनम को हमने तो क्या बोला है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशन. ओके,
सो ये बहुत मतलब हार्मफुल होते हैं। ओके, सो इनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक्टिनाइड्स के ओनली 3 एलिमेंट्स, जैसे कि हमारा थोरियम, एक्टिनाइड्स देखो 7th पीरियड का होता है, ये 6th पीरियड का होता है। थोरियम, प्रोटो एक्टिनियम Pa एंड वन मोर यूरेनियम। ये तीन हमारे क्या होते हैं, ये नेचुरली ओकर होते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑल 11 एलिमेंट्स, ओके, रेस्ट ऑल 11 एलिमेंट्स ये क्या होते हैं, सिंथेटिक मीन्स लैब, प्रिपेयर्ड इन द लैब। ओके, सो हमारे 3 ओनली होते हैं, बाकी ऑल अदर एलिमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द lab only. Fine. Okay, and these are also called as the radioactive elements because लैब में प्रिपेयर करे जाते हैं, और एक हम कह सकते हैं ये हमारे आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। एक और चीज़, फर्स्ट हमारा हो गया एक्टीनियम, देन हमारा हो गया थोरियम, एक्टीनियम होता है 89, देन थोरियम, देन प्रोटो एक्टीनियम Pa, देन इट इज़ यूरेनियम, मीन्स 89, 90, 91, 92। आफ्टर 92 हमारे 103 तक जितने भी एलिमेंट्स बचे, ये हो गए 4, बचे कितने हमारे 10, जो बाकी 10 एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं, बाकी 10 एलिमेंट्स जो हमारे रिमेनिंग हैं, इन्हें हम, इन 10 एलिमेंट्स को हम यही बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और हमारे होते हैं, इनमें यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। एंड वाई ट्रांसयूरेनिक, बिकॉज ये आफ्टर यूरेनियम के हैं, मतलब यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स। ओके, कुछ अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करें इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम बात करें, सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमारा डी ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया था पेनल्टीमेट शेल में, अब इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी पेनल्टीमेट शेल में, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, n-2 0 to 14, n-1 d 0 to 2, देन ns2। ओके, ये होती है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरा, इसकी एक प्रॉपर्टी और क्या है, ये बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और तीसरा, जैसे डी ब्लॉक हमारे क्या कर रहे थे, कलर्ड होते हैं, तो ये भी जनरली ये भी हमारे क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स, या जनरली कलर्ड कंपाउंड्स में फॉर्म होते हैं, राइट। सो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई n-1d ns2, राइट। ओके, ये हो गया आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, राइट। ओके, एंड वन मोर थिंग मैं आपको, दैट एस ब्लॉक एलिमेंट्स वी सेड ना कि ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इस ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ओके, एंड ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, क्यों बोलते हैं अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं या इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, फाइन, ये डिज़ोल्व करते हैं बेसिस में, और जो ऑक्साइड्स अल्कलाइड बेसिस में डिज़ोल्व करते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं या अल्कलाइन कहते हैं। ये भी सेम रीज़न है, बट वाई अर्थ, बिकॉज ये अर्थ क्रस्ट में फाइंड आउट किए जाते हैं। ओके, दैट्स वाई ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि टुगेदर देखो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हमारे क्या हो गए, देखो समरी, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 समरी अगर हम लिखें,
ग्रुप 1 ग्रुप 2 टुगेदर इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 इनको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। देन ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 ये हमारे क्या हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बट एक्सक्लूडिंग क्या, इसमें एक्सक्लूड है, इसमें एक्सक्लूडिंग हो गए हमारे एफ ब्लॉक। ओके, एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें, एफ ब्लॉक हमारे के पास सिर्फ ग्रुप 3 होता है और पीरियड नंबर 1 इसमें होते हैं 6 एंड 7 में पाए जाते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम क्या करते हैं, ग्रुप 1 इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग हीलियम, हीलियम भी आता है। हीलियम की एटॉमिक नंबर होता है 2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, तो लास्ट इसकी जो शेल होता है एस वो फुली फिल्ड होती है, तो इसलिए इसे हम नोबल गैसेस में रखते हैं। ओके, और ये प्रॉपर्टीज फॉलो करता है नोबल गैसेस की, फाइन। अब अगर बात करें हम इसकी कि दैट एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक एक्सक्लूडिंग क्या, एक्सक्लूडिंग noble gases. Why excluding noble gases? These are called as the main group elements. These are called as the main group elements because noble gases की अपनी एक क्लास है. These are called as the main group elements और हम इसे क्या बोलते हैं, main group elements और representative elements. So S block plus P block excluding the noble gases, these are called as the main group elements. Fine. One more thing, the D block elements, the D block is also called as the transition elements. Why transition elements? ये क्यों कहलाए जाते हैं transition elements? Their properties लाई इन बिटवीन, किसके लाई करती हैं, ये किसके बिटवीन लाई करती हैं, एस एंड पी ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं, इसलिए इसे हम डी ब्लॉक कहते हैं। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये कहाँ से आते हैं, ये हमारे कहाँ से आए हैं, सी ये हमारे इधर से आए हैं, राइट, इससे ये हमारे किससे आए हैं, ये हमारे डी ब्लॉक से ही आए हैं, इसलिए हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इन्हें बोलते हैं। सो एस एंड पी ब्लॉक एक्सक्लूडिंग द नोबल गैसेस, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, एंड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या कंसिडर होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूडिंग हीलियम, बट एस एंड पी ब्लॉक्स विच कॉल्ड एज दिस मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दिस इज एक्सक्लूडिंग द noble gases. We will not include the noble gases in this. Okay, thank you.